Okay, good morning. So we are done with the all concept available present in our uh, unit 3, like from decision making and branching to looping. Okay, we had covered if else statement, switch statement, then for loop, while loop, do while loop, and nested if else, and as well as nested for loop या फिर nested loops, all the concept in nested loop. Okay, so there are few statements which are helpful to control the flow of flow in programming language. So break, continue, and go to are those statements which are useful to control the flow in C program. Okay, so uh, in this today's lecture we are going to see the see in detail what those statements are and how we can implement those in our C program. Okay, so in the last lecture we had covered this concept. This is the last concept, which is nested loops. एक loop के अंदर दूसरा loop, and now we are going to see the control statements, as I said, as we discussed earlier. So loop control statements change execution from its normal sequence. So our basic C++ program has its default normal sequence. So using those control statements, we can change the execution from its normal sequence. Okay, so when execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed. Okay, so when execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed. So our first control statement is break statement. So break हम लोग ने पहले भी देखा था, आई गेस इन स्विच हम लोग ने देखा था ब्रेक क्या होता है. So एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि it terminates the loop or switch statement and transfer execution to the statement immediately following the loop or switch. So it does what? It basically does the termination part. And break मतलब क्या, वो इंडिविजुअल पॉइंट पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. सो on that individual point the program has been stopped and the flow of program is move towards the next point. Okay, देखते हैं उसका एग्जांपल. So the break statement in C programming has the following two usage. Okay, so उसके दो description है. First is when a break statement is encountered inside a loop. एक loop के अंदर मैंने अगर break statement लिखा, the loop is immediately terminated. So that loop will be means if I am writing the break statement inside the curly braces, so the program flow is reached at the close curly braces immediately whenever he implements, whenever he runs the break statement. Okay, and the program control resumes at the next statement following the loop. और अगर उसके बाद कुछ प्रोग्राम है तो वो कंटिन्यू उसका फ्लो होगा, उससे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है. एंड सेकेंड उसका यूजेज है, इट कैन बी यूज टू डिटर it can be used to terminate a case in which switch statement means switch में हम लोग ने देखा था, switch में in the switch case loop there are lot of cases. Case 1 for Sunday, case 2 for Monday. So if I am writing uh, one break statement for case 1, so that case will be immediately goes to the termination state. Okay, that entire case is going to be collapse, and rest of the program will be flowed, will be executed by default, will be executed in normal way. Okay, so ये उसके दो यूजेज है. If you are using nested loops, the break statement will stop the execution of the innermost loop and start executing the next line of code after the block. So हम लोग ने ये भी देखा था, nested loop में हम लोग ने break statement देखा था. So that break statement will stop the execution of the innermost loop, जो अंदर का है loop वो stop कर देगा and start executing the next line of code after the block. Okay, so see here the syntax of the break statement क्या है, सिर्फ break कीवर्ड हम लोग को यूज करना है and after that semicolon, that's it.
सो सी हियर, इफ यहाँ पे देखो ये अपना कंडीशनल कोड है, हाँ ये कंडीशन है, डू वाइल लूप जैसा है ये, डू दिस अप टू वाइल द कंडीशन इज दिस, ओके। सो कंडीशन इज ट्रू है, सो वो रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है। बट एट सर्टन पॉइंट इफ आई एम पुटिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन बिटवीन दिस कंडीशन, या फिर इन बिटवीन द कंडीशनल कोड एंड द एक्चुअल कंडीशन, सो दैट entire block has been stopped and program goes to the termination step, ठीक है। सो ब्रेक क्या है, एक अलर्ट है, वार्निंग है, जो डायरेक्टली मुझे वो पॉइंट को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट जो लाइन है मेरी, या फिर अगर कोई लाइन नहीं है तो वो डायरेक्टली टर्मिनेशन पे लेके जाएगा, एंड पॉइंट पे लेके जाएगा। दिस इज माय एंड पॉइंट, ओके। सी हियर प्रोग्राम व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स द ब्रेक स्टेटमेंट। मेन फंक्शन लिखा है, हेडर फाइल और मेन फंक्शन कॉमन चीजें लिखी है। उसके बाद एक लोकल वेरिएबल, आई एम क्रिएटिंग वन लोकल वेरिएबल नेम्ड एज ए, डेटा टाइप है इंटीजर इंट और वैल्यू है 10, ओके। एंड आई एम क्रिएटिंग व्हाइल लूप, ए इज लेस देन 20, नॉर्मल प्रोग्राम है, 10 है, सो ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 20, सो प्रिंट क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ ए इज, देखो 10 प्रिंट हो रही है। बट उसके बाद क्या है, ए प्लस प्लस हो रहा है, हाँ मतलब लूप में बाहर नहीं जाने वाला है वो, बिकॉज ए प्लस प्लस में आई एम अप्लाइंग वन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इनसाइड द लूप। सो ए प्लस प्लस हुआ, सो वो 10 प्रिंट होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 20 होगा, सॉरी 12 होगा, 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 तक वो प्रिंट होना चाहिए, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 90 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 20, वहां पे वो खत्म होगा, 10 से लेके 19 तक प्रिंट होने चाहिए अब तक। बट इसके बाद क्या लिखा है मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, मतलब ए अगर ए 20 से छोटा है, ए की स्टार्टिंग वैल्यू है 10, हाँ, और वो 20 से छोटा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन मैंने मतलब वाइल लूप में वो रन हो रहा है। बट इनसाइड द वाइल लूप आई एम क्रिएटिंग वन इफ कंडीशन दैट टेल्स विच टेल्स ए इज लेस देन 15, मतलब 16 17 18 19 20 है, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे 10 से लेके 19 तक रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, बट ड्यू टू दिस ब्रेक स्टेटमेंट, ड्यू टू दिस इफ स्टेटमेंट, आई एम putting one break statement, the output will be 10 11 12 13 14 15, because 16, whenever the value is 16, the program automatically break that control statement and return the zero value to the compiler, okay। so ये break का use है। then the next is continue, so break से क्या किया हम लोग ने, stop किया, continue से वही चीज को हम लोग continue कर रहे हैं, that's it। सो ब्रेक से मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक किया, यूजिंग कंटिन्यू आई एम कंटिन्यू दैट स्टेटमेंट, दैट प्रोग्राम फ्लो यूजिंग द कीवर्ड कंटिन्यू, ओके। सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम वर्क्स समवॉट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, सेम है बट द अपोजिट एक्शन, ओके। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, मतलब ब्रेक क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था टर्मिनेशन को, स्टॉप करने को, इट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस, और ये क्या फोर्स कर रहा है, कंटिन्यू करो, इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन इट विल फोकस ऑन कंटिन्यूएशन, skipping any code in between, okay। For the for loop, continue statement causes the conditional test and increment portions of the loop to execute. For the while and do while loops, it causes the program control to pass to the conditional test। for के लिए क्या करेगा, causes the conditional test and increment portion, it will focus on the test condition and increment portion of the loop, वो दोनों एग्जीक्यूट करने वाला है। और फॉर द while and do while loop ये क्या करेगा, it calls the program control to pass to the condition test, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंडीशनल टेस्ट ही रहते हैं, वो इनसाइड द लूप बॉडी वी कैन नॉट असाइन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो वो उसका काम करने वाला है। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग पर्टिकुलर पॉइंट इट विल कंटिन्यू द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखो ब्रेक में क्या था, वो डायरेक्टली पॉइंट कर रहा था एंड पॉइंट पे, यहाँ पे देखो कंटिन्यू से क्या हो रहा है, फिर से वो कंडीशन को पॉइंट कर रहा है और कंडीशन रन होने वाली, ठीक है। देखते हैं, सी हियर मेन फाइल है अपनी, मेन फंक्शन, उसके बाद हेडर फाइल्स है, और सेम मैंने वेरिएबल जनरेट किया है, ए वैल्यू है 10, डेटा टाइप है इंटीजर, ओके। यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप जनरेट किया है, डू दिस एंड वाइल दिस, ओके, डू दिस एंड वाइल दिस। सो डू में क्या है, a इज इक्वल टू 15, अभी a की वैल्यू 10 है और ये क्या कंडीशन बोल रही है,
इफ a इज इक्वल्स टू 15, मतलब a की वैल्यू अगर 15 है, सो स्किप दिस इटरेशन, ये कमेंट किया है मैंने, अगर a की वैल्यू 15 है, सो a इज इक्वल टू a प्लस 1। हाँ, मतलब a प्लस प्लस करना है मुझे, अगर a की वैल्यू 15 है तो 16, 17, 18, 19 ऐसे होने वाली है। और मैंने कंटिन्यू बोला है, ओके, कंटिन्यू क्या बोला है, printf value of a is this and a plus plus। सो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 15 है तो ये परफॉर्म होने वाला है, अदरवाइज कंटिन्यू करो, मतलब डू नॉट ब्रेक द प्रोग्राम। जैसे मैंने ब्रेक बोला था तो ब्रेक पे क्या हुआ था, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, सो ये ब्लॉक परफॉर्म होने वाला है क्या, नहीं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस दैट विल से कंटिन्यू दिस ब्लॉक। सो वैल्यू ऑफ a क्या है, 10 है, और a प्लस प्लस हो रहा है, मतलब 10, 13, 14, 15, 16, ये परफॉर्म होने वाला है। कब तक, वाइल कंडीशन a इज लेस देन 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 15 करता तो ही ये ब्लॉक परफॉर्म होता, बट यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और मैंने कंडीशन में बोला है a इज इक्वल टू 15, बट द कंडीशन नॉट गेट्स मैच्ड, एंड तरी पण ड्यू टू दिस कंटिन्यू वी कैन प्रोसेस द फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। समझ में आ गया, जो ब्रेक ने ब्रेक किया था कंटिन्यू कर रहा है, दैट्स इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गो टू स्टेटमेंट। सो नाम में ही है, गो टू मतलब क्या, वो पॉइंट पे जाओ, ट्रांसफर कंट्रोल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे देखो, गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन अनकंडीशनल जंप। गो टू मतलब वहां पे जंप करना है, फ्रॉम गो टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट, मतलब गो टू एक पॉइंट है एंड वो पॉइंट से वो लेबल्ड, मैंने जहाँ पे बोला है कि वो पॉइंट पे जंप करो, वो पॉइंट पे वो जंप करेगा विद इन अ सेम फंक्शन, इन द सेम फंक्शन। ओके, सिंटेक्स देखो, गो टू लिखना है लोअर केस में एंड लेबल, एंड आफ्टर दैट लेबल और उसके स्टेटमेंट, मतलब लेबल और उसका नाम। ओके, सी हियर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। सो स्टेटमेंट 1 में मैंने बोला गो टू स्टेटमेंट 3। ओके, सो वो स्टेटमेंट 3 पे जाने वाला है फ्लो, ये पार्ट पूरा स्किप होगा फिर। ठीक है, देखते एग्जांपल उसका। सी हियर द प्रोग्राम विच डेमोन्स्ट्रेट्स go to statement, I am creating same variable int a is equal to 10। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक लेबल क्रिएट किया है, हाँ, ये लेबल का नाम है लूप, और उसके अंदर मैंने डू वाइल का जो डू वाला पार्ट है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, a इज इक्वल टू 15। ओके, ए प्लस प्लस करना है, सेम प्रोग्राम है। अभी इसने क्या बोला, गो टू लूप मतलब फिर से यहाँ पे जाओ अगर ये हो रहा है तो, हाँ, बट यहाँ पे a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू कितनी है, 10 है, सो वो ये पार्ट स्किप करेगा और 10 से लेके 19 तक वो प्रिंट करने वाला है। ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट टेल्स इज दैट गो टू लूप मतलब यहाँ पे जो, ठीक है, अगर मैंने ये लूप वाला कंडीशन कहाँ पे नीचे रखा होता प्रोग्राम के नीचे, सो वो प्रोग्राम का फ्लो ये सारा पार्ट स्किप करके वहां पे जाता। ठीक है, दैट इज माई गो टू स्टेटमेंट। ओके, सो वी आर डन विद द, और ये है इनफाइनाइट लूप। द लूप बिकम्स एन इनफाइनाइट इफ अ कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। यहाँ पे देखो मैंने फॉर लिखा है, और प्रिंट एफ द लूप विल रन फॉर एवर बिकॉज द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। ये जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉल्स ही नहीं है, वो ऐसे ही प्रिंट होने वाला है, एंड ही नहीं है लूप को। द फॉर लूप इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और ये हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं। सिंस नॉन ऑफ द थ्री एक्सप्रेशंस, मतलब यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बराबर ना, और सेमीकोलन से सेपरेट कर रहे हैं, बट आई एम passing the null value inside the for loop, so that for loop is going to be considered to my that for loop is considered as infinite loop। वो उसे कभी खत्म, इनफाइनाइट मतलब क्या, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको रेंज ही नहीं है। ठीक है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिलेबस में है भी नहीं, इधर था टॉपिक इसलिए बोल दिया। सो वी आर डन विद द चैप्टर 3 यूनिट 3 डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग इन सी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। ओके, थैंक यू।